Welcome to yet another session of Scratchpad Sessions. And today I have with me someone who weaves his poems and stories so beautifully. This man had performed a 1 hour show of poems and stories right here at the Habitat, and I just got to witness it. Not just while shooting it, but the live experience of it. And trust me, it gave me goosebumps and I got really inspired. Can we please have a round of applause for Mr. Mohammad Sadriwala? Thank you so much for coming here. Thanks for inviting me. I'm very glad we did this. Like we spoke about a while back, that I think a year back I reached out to you, and it's taken a lot of time and effort, but कोई बात नहीं finally आ गया है. देर आए दुरुस्त आ है गया. सही है. But that's nice. How's your journey been so far as a performer in this city of Bombay? How's it going? इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर. मतलब किसी दिन लोग आपको पूछते हैं, किसी दिन आपको मौका मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है. बट द अल्टीमेट गोल इज़ लाइक आप आओ, कहानी और कविता परफॉर्म करो. बिकॉज पहली बार भी आपने किसी के लिए नहीं सोचा था, yeah. खुद के लिए सोचा था. और आई गेस एक दिन आएगा जब वापस से कोई सुनने वाला नहीं होगा. Oh, तो दैट्स अ लाइफ ना. लाइक every artist goes from one point to a Yeah. peak, then he goes to a point when there in his life at the end there is no one. So I guess जब तक वो काम से मोहब्बत है तो बाकी की चीज़ें वो क्या बोलते हैं, आजू बाजू की जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसकी तरह आते जाते yeah. रहते हैं. Sorry. I think it's all nothing technically is constant or permanent. Yeah, वो तो please. phase आते जाते रहेगा. Even while you're, I think, at your peak, there will be phase of writing, there'll be phase of performance. I think it's a part of being an artist. बिल्कुल बिल्कुल सही. Yeah, right. So when do you remember the first time you ever performed? Like since you spoke about कि हम अपने लिए perform करते हैं. पहली बार जो था वो डर डर के आए स्टेज पे सबने, and we were like चलो करते हैं. So do you remember, not as a performer but in life anytime as a Yeah, kid? so I was in my first year, FIBSC में था, Xavier's में था. लेक्चर रूम नंबर 11 था. Oh wow. और हमारा फाउंडेशन कोर्स का क्लास चल रहा था. सो अब जेवियर में तो सब लोग अंग्रेज़ी में ही ज़्यादा बात करते थे, तो मेरी बहुत फटती थी यार कि मैं कैसे बोलूँगा. तो उस दिन अचानक से कुछ टॉपिक पे मैम ने, कुछ डाइवर्सिटी के टॉपिक पे कुछ बात हो रही थी. सो मैम ने कहा कि किसी पे के पास कुछ ओपिनियन है कि नहीं बताओ. तो मैं बैठा था और मैंने कविता लिख दी थी अपनी किताब में. मैंने हिम्मत जुटा के कहा कि मैंने कविता लिखी है, अगर आप इजाज़त दो तो मैं सुना सकता हूँ. तो शी गॉट वेरी हैप्पी. शी सेड कि हाँ स्टेज पे आओ. मतलब प्लेटफॉर्म टाइप होता था Yeah, वो, classroom में. क्योंकि 150 लोगों की क्लास है तो आपको थोड़ी ऊंचाई से पढ़ाना पड़ता है. तो फिर मैंने कहा कि मगर एक शर्त है. तो उसने कहा क्या शर्त है. तो मैंने कहा मैंने कविता तो हिंदी में लिखी है और आप तो अंग्रेज़ी में पढ़ाते हो. उसने बोला इससे कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी में लिखा है तो और भी अच्छी बात है. So that time I performed for the first time in front of an audience. It was not a planned performance. So that was my first performance I performed, and उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ धीरे धीरे और चलता आ Yeah, रहा है और अभी तक. इंशाल्लाह चलता रहेगा. But I mean, somewhere I can still say it was planned. मतलब the seed was there. कहीं ना कहीं था कि you हाँ, write, you वो want to तो- come on stage, you want to express. Like ऐसा नहीं था कि I want to come on stage. Like I never thought कि I'll get a chance to be as a जिसको एक माइक मिलेगा और हज़ारों की ऑडियंस मिलेगी. मतलब ऐसा था कि हाँ भाई कविता लिख दूंगा, अखबारों में छप जाए या विज्ञापन में छप जाए. तो बस वैसा ही था. मगर ये एक अच्छी बात है कि वो कविताओं को कहने का मौका मिल रहा है. बिकॉज वो फील के साथ जो निकलता है, आप ऑडियंस के साथ एक इंटरेक्शन, वो जो एक जर्नी होती है ऑडियंस के साथ कविता को लेके. सो दैट्स अमेजिंग. And did you? So was this the first time connection? The first time performed in that classroom, you felt like, yeah, this is something I should. No, I didn't feel that time. But that time पे I was happy that everyone applaud for me. और सबको पता चलेगा कि यहाँ पे एक सादरी वाला करके एक लौंडा है क्लास में जो कविताएं लिखता है. तो उस दिन से थोड़ी अपने को इज्जत विज्जत मिलने लग गई थी. उन पटेल तो थे ही, मतलब हिंदी में बात तो करते थे. उसके बाद से फिर लोग भी हिंदी में थोड़ा बात करने लग गए कि भाई अपना भाई है, ये हिंदी में बात करता है तो अपन भी हिंदी में बात कर सकते हैं. और फिर एक्चुअली फर्स्ट टाइम पे वो तब फील हुआ था जब मैंने हाइव में हुआ करता था. तो संदीप शर्मा जो है, जो यहाँ पे कई बार उन्होंने परफॉर्म किया है, सो ही वॉज होस्टिंग एन इवेंट. सो दैट टाइम पे आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द सर्किट एंड ऑल, एंड आई परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. Sandeep was there, then Ramneek Singh was there at that time, Kais Jaunpuri was there, and Tripurari was there. So all these people were there.
फिर वहाँ से धीरे धीरे सब पता चले, फिर कौन सी जगहों पे होता है, हाँ। TPC के बारे में पता चला, Yeah. WTS के बारे में पता चला। वो जैसे जैसे जाते गए फिर तो मतलब एंजॉय करते थे कि हाँ भाई ठीक है, ये एक घंटा जो है ये खुद के लिए है। मतलब पूछते भी थे लोग कि भाई क्यों जाते हो ट्रेन बदल के रात को, क्या मिलता है 12-12 के बजे जाते हो। और वो टाइम में ऐसा कुछ सोचा था कि शो वगैरह मिलेंगे, पैसे वैसे मिलेंगे आगे जाके। सो दैट एवरीथिंग हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली, इट वाज़न्ट प्लान्ड लाइक कि मैं लिख रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, या मैं लिख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये एच आ जाए मेरे पीछे। आज बहुत से लोग पूछते हैं कि सर वो आप जहाँ परफॉर्म करते हो वो एच के पीछे हमको भी परफॉर्म करना है। मैंने कहा भाई मतलब परफॉर्म तो तुम भी कर सकते हो जाके, मगर वो कभी वायरल वाला ऐसा सोच के नहीं लिखा था। But that's very nice because it comes from very organic place then. Yeah. You know that Abhi is a different space because you didn't imagine you just like अपने लिए लिखते हैं इवन and अभी भी ऐसा होता है हर्ष के, अभी देखो अभी हाल ही में मैंने एक कहानी निकाली, उसको 1000-2000 व्यूज़ ही है, उसको ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। तो वो डिपेंड करता है, कभी कभार लोगों को अच्छी लगती है, कभी कभार लोगों के साथ क्लिक नहीं होती है। बट अगर आप उस कहानी में बिलीव कर रहे हो तो आप उसको शेयर करो लोगों के साथ। क्योंकि प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया कभी भी स्पोकन वर्ड फॉर्मेट में मैंने नहीं लिखी थी। yeah. सॉरी। वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट थी, शॉर्ट फिल्म की। Oh. तो वो 2 साल तक कभी मौका मिला नहीं। और फिर एक दिन मैं XIC की लाइब्रेरी में था तो नवलदीप का फ़ोन आया कि टे पटेल का इवेंट हो रहा है, आप आओगे? मैंने कहा मेरे पास कोई कहानी तो है नहीं। बोला अरे कुछ भी सोचो ना, कहानी होगी। और तभी ये कहानी ध्यान है। सो देन आई कन्वर्टेड दैट इन अ स्टोरी स्पोकन वर्ड फॉर्मेट। आई केम लाइक आई वाज पिक्ड अप फ्रॉम दैट लकी ड्रॉ थिंग। वो दिन मैंने परफॉर्म किया। वो दिन गौरव भी था मेरे साथ में। गौरव ने उसकी एक आर्मी के दिन की किस्से जो थे उसने वो परफॉर्म की थी। वी हैड अ ग्रेट मोमेंट, यही सेम जगह पे हम लोगों ने परफॉर्म किया था। और फिर लाइक 2-3 दिन बाद द मैजिक हैपेंड। Yeah, it just reached out to a lot of people. लॉट ऑफ पीपल। And it's so fascinating how something that started out as a short movie script landed up just that story. But I think you should consider making it now that it's हाँ, अगर धर्मा बाहर है वाले या अभी। यशराज वाले ये शो देख रहे हैं तो प्लीज स्क्रीन प्ले है मेरे पास। You can still do a lot. I think with the people who follow you, you can start like a fund for it and like आई लोग तो कैन बहुत स्टार्ट इट। लोग तो बहुत है बनाने लोग तो बहुत है। और ऐसा है कि ये जो चीज़ है उसकी उसके जो नुआंसेस इतने हैं कि इराक का एक बाज़ार दिखाना, फिर ऐसे लोग दिखाना जो अरबी ज़बान बोले वो बोले, तो इट इन्वॉल्व्स अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉट ऑफ बैकिंग इन टर्म्स ऑफ फिनेंस। सो यू कांट गो रॉन्ग हियर एंड देयर Yeah, बिकॉज and पीपल हैव realistic. ऑलरेडी। Show it realistically. हाँ, बिकॉज लोगों को कहानी ऑलरेडी बहुत पसंद आ गई है, तो इट हैज़ टू बी अ नॉच अबव वट एवर आई डू। तो अगर वो नहीं कर पाऊंगा तो भी बोल सके यार सर ये इसमें वो मजा है, नहीं आया, वो वाली yeah. बात है, तो वो नहीं होना चाहिए। And like you mentioned the story, um, generally I've noticed you have this trend of you see a lot of inspiration of your characters, a lot of what we see around. Generally. या 100%। All of them are ऑल ऑफ देम लाइक मेरे बाजू बाजू में वाले, बैठे घर के घर अंदर, वाले, सब ऐसे ही है. Or जो you मर meet in गए office. उनको भी मैं ले आता हूँ कहानी में, सबको ले आता हूँ। So I'm assuming that is one sort of inspiration, just people around and stories that they carry. But who do you look up to when you have to see inspiration, which could be anyone from the writers that you read? There are many people like so I look inspiration in terms of discipline like and dedication. So my elder brother, उनका नाम हुसैन है, हुसैन भाई है, तो मैं उनको एज ए इंस्पिरेशन बहुत देखता हूँ बिकॉज ही इज़ वेरी ऑनेस्ट इन हिज वर्क, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू वर्क. So he's one. Then Roger Federer is the one which I'm very much inspired by the way he carries himself and all. और राइटर में अभी काफ़ी सारे राइटर के बारे में नहीं पता है, मगर जैसे जैसे पता चल रहा है, गुलजार साहब के बारे में बहुत पता है कि वो बड़े डिसिप्लिन है. लाइक वो 9-10 बजे अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं काफ़ी और लिखते हैं, डेली लिखते हैं, मतलब इस उम्र में भी लिखते हैं. तो वो और अपने काम को क्रिटिक भी बहुत करते हैं. लाइक ही कीप्स गोइंग थ्रू हिज ओन वर्क, ही कीप्स रीडिंग. सो दीज 2-3 फैक्टर्स आर द वन विच inspires me. Like more than their work, what they do, I'm more inspired by the discipline what they have. So they are very मतलब ईमानदार है अपने काम में, वो करते रहते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है. And I think it is important
when it comes to creating art is to be honest. Foremost thing बिल्कुल सही. is to be मतलब honest. वो बहुत बार होगा कि आपने बनाया तो 99% लोग कहेंगे कि सर ये गलत है, मगर 1% आपको पता है ना कि आप सही हो, तो वो ज़्यादा मैटर करता है. Yeah, I think at the end of the day, you've written it, your Yeah, experience. it's your experience. And since we are all so different, we are similar in our just nuances and our activities or our sensibilities. But end of the day, we still see the world very differently. So I feel like that matters. But you mentioned this very interesting point of how Gulzar Saab writes every single day. What about you? Do you have this practice of writing every single day? See, I have to write every single day because Because I'm a you- copywriter. So I have no escape for that. But कविता no, writing for yourself. कॉपी राइटिंग कैसा है कि लाइक मुझे हमेशा से कॉपी राइटर बनना था. लाइक एज अ कॉपी राइटर, नॉट वेरी स्पेसिफिक कॉपी राइटर, मुझे हमेशा से कहानीकार बनना था. क्योंकि मेरा कहानियों के प्रति जो रुझान है वो एड्स के थ्रू आया है. फेविक्विक की मच्छी वाली ऐड हो, या फिर हर घर कुछ कहता हो, या फिर पेप्सी ये दिल मांगे मोर. तो मैं हर बार सोचता था यार इतने कम टाइम फ्रेम में इतनी अच्छी कहानी कैसे लोग बोलते हैं. तो वहाँ से वो शुरू हुआ. एंड अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एजेंसी में आपको किसी दिन काम नहीं होता है, तो मैं एड्स देखता हूँ, पुराने जो एड्स है, या फिर कांस जो ऐड है, जो बाहर की स्टोरी टेलिंग. बिकॉज एक होता है कि एक कहानी आप पढ़ते हो, एक वो होता है. एक कहानी वो भी होती है कि आप जब आप देखते हो ऑडियो विजुअल मीडियम, तो भी आप एक चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हो. तो आई मेक श्योर दैट आई डू दैट एटलीस्ट. So every day you seek some I kind see, of I see. inspiration. I spend every day 1 hour just watching ads. Wow. Watching ads. So how do you focus on what do you want to say, if you have to say something, while you're also seeking inspiration from this and not being driven by the same idea, which I think usually happens. मैं अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ, अगर ये वैसा क्या वैसा है, तो मैं बोल देता हूँ ये मैंने कॉपी कर दिया है. So this is a test for yourself. Right? मैंने Like, बोला ये कॉपी कर दिया, ये चोरी वाला काम हो गया. सो आई टेयर द पेपर. टेयर तो नहीं, पेपर पे तो मतलब फिर दूसरे पन्ने पे उसको दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करता हूँ. सो लाइक इट्स वेरी सिंपल. लाइक मैं इतना कोई अपने आप पे ज़्यादा नहीं, जोर not- नहीं डालता हूँ. बहुत सिंपल है. आपने लिख लिया, फिर आप बाद में उस चीज़ को कंपेयर करोगे, तो एक ही सवाल है कि भाई क्या ये कॉपीड है, येस और नो. येस है देन डू समथिंग न्यू, नहीं है तो उसको देखो क्यों नहीं है और कैसे उसको और फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया जा सकता है. so now you're working in an agency. So I think most days you're writing, at least for someone else for some brand or लाइक something. 5 days, Five. 6 days I write. Does that with that kind of restriction, it is kind of restricting, right? You have to write in a certain way. Yeah, How does that help you in any way when you're writing for It yourself? when helps you're a writing? lot. Yeah. It helps a lot. 'Cause ऐसा होता है कि हर ब्रांड एक इंसान है. जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ गिट्स के लिए लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, जो कि जिसके गुलाब जामुन के पैकेट्स आते हैं, खमन ढोकला के पैकेट्स आते हैं, उसकी एक टोनैलिटी है, उसका एक सॉफ्टनेस है अलग से. वर्सेस जब मैं अगर मैं सेंटर फ्रेश के लिए लिख रहा हूँ, तो वो क्वर्की होना चाहिए. हाँ. वो इंसान अलग है, वो ब्रांड का जोन है, वहाँ पे इमोशनल नहीं हो सकता. Right. तो वो टोनैलिटी जो होती है ना, ब्रांड का जो ऑरा होता है, दैट हेल्प्स यू टू डेवलप वैरायटी इनटू योर राइटिंग एंड ऑल्सो इन योर थिंकिंग. सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू राइट एनीथिंग नेक्स्ट, लाइक बी इट अ पोएम और अ स्टोरी, आप कोशिश करोगे उसको थोड़ा अलग करने की. वैसा होता है. Like do you have to take a different form, or just say it differently, or just remove like try a different voice basically, because you know how people have, everyone has a stage voice. तो कैसा होता है कि जब आप एड के लिए लिख रहे हो, तो इट हैज़ टू साउंड डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग फॉर मदर्स डे, सो टोनैलिटी फॉर सेंटर फ्रेश विल बी कोर्की के मस्ती वगैरह वाला जोन, और कंपैरिजन टू पार्ले जी होगा तो बहुत सीरियस एंड इमोशनल होगा. तो वो आपको करना है क्योंकि वो ब्रांड का पर्सोना है. अब जब पर्सनली लिखने के लिए हम लोग आते हैं, तो लाइक आई ट्राई कि भाई मैं कहानी क्या बोल रहा हूँ. कभी कभार भी मेरी बहुत सी कहानी फ़नी भी है,
ह्यूमरस भी है जो मैं बहुत सी नहीं डाल सकता हूँ, जो मैं ऐसा यहाँ पे आके Yeah. सिर्फ सुना के चले जाता हूँ. सो दोज आर ऑल्सो देयर. तो आई गेस इफ यू कीप ट्राई, लाइक देर इज अ स्टेज वॉइस विच इज सेट ऑफ योर्स विच पीपल नो कि हाँ भाई, जैसे लोगों को पता है कि ये आर्टिस्ट एक्स आर्टिस्ट इस टाइप के जोन की कविताएं लिखता है, ये वाई आर्टिस्ट इस टाइप के जोन की कहानियाँ बोलता है. वो फिक्स है, वो लोग बना लेते हैं. आप भले कुछ अलग भी ट्राई करते हो ना, तो लोग बोलते हैं कि यार सर वही करो ना. बट कैसा है कि मेरे हिसाब से नया करते रहना चाहिए हमें. Yeah. Because if you keep having a variety, even you enjoy it. Like Yeah. at least I try to do that. Like that's the reason I don't pick same topics. Like मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरे टॉपिक ले सकूँ. जैसे environment मेरे दिल से बड़ा close है, तो मैं environment पे कोशिश करता हूँ कि मैं environment के अलग अलग मौजू पकड़ सकूँ. अब जो बॉल्डनेस पे मैंने लिखी है वो बहुत फ़नी जोन में लिखी है मैंने. हालांकि वो सीरियस इशू है, बट उसको फ़नी जोन में लिखा गया है. फिर एक पोएम है नुन्नी जिप में फंस गई करके. इट्स ऑन जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन. अगेन इट्स ऑन अ फनी जोन, दो इट्स अ सीरियस टॉपिक. तो आई एंजॉय ट्राइंग डिफरेंट हैंड्स बिकॉज आई एम आई वुडंट से आई एम ट्रेन टू डू दैट, बट आई लाइक टू राइट इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉपी राइटर. Yeah, I feel like it's like surprising yourself. Yeah. कि आज क्या, what mood and what kind of हाँ, stuff do वही you want to मतलब. put? Because that's the way you could have said the whole story. You could have done it in a more like how Ganjapan Express. You could have done it in a more serious manner. Yeah. But you chose कि आज ये mood है. तो हाँ, कुछ- अब उसमें बता सकते थे कि गंजे को कितने लोग चढ़ाते हैं, लड़कियां Yeah, पसंद you नहीं could करती very है. easily. वो कर yeah. सकते थे. And I think it's a very first idea. कि when you हाँ. think of this, you're like first idea क्या है? You went to the And- 10th, 12th, 15th idea I think, and then you picked up. एंड हर्ष, मैं जिनके अंडर काम करता था, अभिजीत अवस्थी, उनको कीनू हम बुलाते हैं. ही इज़ एन ओगिलवी, एक्स ओगिलवी के एनसीडी है. तो हर बार बोलते थे कि अगर आपको कम टाइम फ्रेम में कुछ बात बोलनी है ना, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो फ़नी वे में बोलो. इसीलिए मेरी कविताओं में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फ़नी रख सकूँ, क्योंकि कविताओं का मेरा स्पैन बहुत छोटा होता है. 1 से 2-2.5 मिनट का होता है. कहानियों में लंबा होता है, तो आई ट्राई टू कीप इट मोर इमोशनल. Right. बिकॉज वहाँ मेरे पास टाइम का बैंडविथ है, यहाँ पे नहीं है. And also So I people try take to that keep journey it. with you for 10 minutes. Yeah. They take that journey with you. So it's nice to leave them on that note. And because the attention span of that 2 minutes, you want to deliver something. And it also helps you as a performer when you're performing for a larger audience for around like 20 to 30 minutes. So you have a whole bandwidth. Like I keep a mix match. शुरुआत में मैं हंसाता हूँ, बीच में थोड़ी प्यार की बातें करता हूँ. प्यार की बातें मैं नॉर्मली स्टेज पे नहीं करता हूँ, पर वो अलग से लिख के रखी थोड़ी बहुत कहानियाँ, तो वो करता हूँ. फिर लास्ट में फ़नी नोट पे उनको कर गया, सो दैट दे गेट अ बुके ऑफ All variety of. all variety. Yeah. And what do you think about how reading is important right now? And what are you reading right now? रीडिंग इज़ मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब सांस लेने जितना इम्पोर्टेंट है. तो आई एम रीडिंग अ बुक. मतलब आप लोगों ने तो पढ़ी होगी नोवाल हरारी की द फर्स्ट बुक जो है सेपियंस करके. हाँ, Sapiens. तो अब वो भी कैसे हुआ था कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ था, तो वो यहाँ आए हुए थे, इंडिया आए हुए थे. उनकी थर्ड बुक जो उन्होंने रिलीज़ की थी. एंड एवरीबडी वांटेड टू गो एंड सी हिम टॉक. सो माय फ्रेंड सेड कि दिस इज़ अ गाय. सो आई सेड मेरे को पता नहीं है भाई, अपने को थोड़ी मालूम कौन है. मैंने बोला कि तू भी चल. तो मुझे वो लोग ले गए, मैं गया, मैंने सुना, मुझे बड़ा मस्त लगा. फिर देन आई बॉट दैट बुक, सो आई एम रीडिंग दैट. तो मेरा कैसा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे टाइम लगता है थोड़ा पढ़ने में. Same. I think it takes a long time to pay attention. So that's the reason, like, I try my best to consume stories through audio and visual medium by looking at ads. कोई ऐड ऐसे जो मैं बार बार देखता हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं. And also, I think like a lot of pieces of audiovisual material that's out there, it has so many. It's so open-ended at some point. It has so many openings. You could start from anywhere. You could put in anything because people have put in so much. Like the craft is so on point that they know what they want to say. एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग कि भाई एवरी ईयर आपको दिवाली पे इसी ब्रांड के लिए बोलना है, मगर कुछ नया ना बोलना कुछ है. हाँ. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. लाइक सर्फ एक्सेल नोज कि हाँ भाई रमज़ान और होली के टाइम पे यू हैव टू राइट अ कैंपेन ऑन दाग अच्छे विच हैज़ टू बी
better than the previous Last year. Last year. At time it goes, at time it doesn't, but still behind your back आपको पता है कि आपको नई अभी बात आ रहा है, बोलनी है। हाँ। तो वो बड़ा सही चीज़ है कि आप हर बार कैसे उसको अलग अलग कट्स दे रहे हो एक ही पॉइंट को। What makes you so excited or intrigued about writing? What makes you go back to notepad or notes on your phone and be like, आज लिखना है, आज? एक बड़ी सिंपल चीज़ है, एक इबादत जैसा लगता है, मतलब दिस इज़ द बिकॉज व्हेन आई रोट फॉर द फर्स्ट टाइम आई टोल्ड माई सेल्फ दिस इज़ द बेस्ट वे आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ, सो वेन एवर आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस आई गो बैक टू द पेन एंड पेपर। And was this the same classroom or was this much before that? इट हैपेंड मच बिफोर, वो 11th में होता था यार, अच्छा। अभी हम तो बॉयज़ स्कूल के पढ़े हुए हैं तो उस टाइम पे फना पिक्चर भी रिलीज़ हुई थी, तो उस पर थोड़ा शायरी का बड़ा इन्फ्लुएंस था टाइम पे। तो मैंने कभी भी डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं किया था, मैं पहले पढ़ा 5-6 किताब। उस टाइम पे तो पॉकेट मनी मेरी कुछ 50 रुपये हुआ करती थी, तो मैं तो इतने पैसे थे नहीं मेरे पास, तो 10-15 रुपये की गुमनाम शायरों की जो किताबें आती थी वो लेके आता था, मैं पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने कोशिश की लिखना, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लाइक। But do you ever go back in time and see your older pieces? आई डू दैट, आई डू नहीं, दैट। अरे नहीं, नहीं, नहीं। बहुत सी बार तो मैं फाड़ देता हूँ। अच्छा। मैंने अपने मैंने एक बार 50 पोएम का कलेक्शन लिखा था और मैं चाहता था कि मैं इसको किताब के फॉर्म में छपाऊँ। 2017 में या 16 में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, मैं फर्स्ट टाइम रेख्ता में गया, मैं एज ए वॉल्टियर गया था, 3 दिन के लिए मैं दिल्ली गया था। तो मैंने वहाँ गुलजार साहब का टॉक सुना, तो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा कि गालिब साहब की, तो किसी ने पूछा कि व्हाट मेक्स गालिब such a great writer. So he said the quality what he had was he used to self-critique his own work. Nowadays people are in a rush to get their books published. But when they grow old and they look back their work, they saying यार क्या लिखा था हमने. So why to feel that regret after years when you can do it? So that's the reason उनके सिर्फ उनका एक ही, उनके 1200 अशार का एक दीवान छपा है, बिकॉज उन्होंने बाकी के शेर जला दिए थे, और जो शेर जला दिए थे फिर बाद के जो बादशाह वगैरह है, जो बाद का ज़माना है, तो लोगों ने बोला कि भाई किसी के पास गालिब के दूसरे शेर है तो वो लेके आओ, उनको बदले में अशरफिया मिलेगी। तो देन आई केम बैक, लाइक आई गॉट इंस्पायर्ड कि आई शुड ऑल्सो सेल्फ क्रिटिक माई वर्क। तो मैं आया, मैंने 50 कविताओं में से देखा कि 35 कविताएं तो छपने के लायक नहीं है, तो मैंने 35 को फाड़ दिया। मेरे पास उसकी कॉपी भी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी और नहीं ये कितना है। पुराना है? दिस वाज व्हाट, लास्ट ईयर और This happened like 2 or 3 years ago maybe. so something inspired you to do something which was Yeah, that's the point. Like after that, प्यारे बाबा I wrote. तो वो वैसा ही है कि आप ठीक है, आपने अभी भी किताब तो ऐसी कोई छपी नहीं है, मगर वही है ना कि आपने जाके अपने काम को देखा और वो लायक नहीं था। मतलब अगर मुझे ही अपना काम मज़ा अच्छा नहीं आ नहीं रहा है, लगा तो हाँ। मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि आप पढ़ो उसको। I think it's very important and it's very true of what he said that I think we're in a rush. अब तो सब publish बहुत तो बहुत दूर है, अब बहुत तो हम वीडियोस से मतलब अभी आजकल बहुत रश में, बहुत ज़्यादा गई मैं। अब समझाए क्या, मतलब सबको भी अपनी समझ से like everybody wants to be a, viral poet, they want to be a viral artist. sensation. Like viral, I don't know what. But I think that it began in I think when I had come, we were discussing the same thing कि वो 2017 में जो break हुआ उसके पहले का जो time था where we all used to sit and meet and there was no phone दिख रहे, cameras है, there's nothing, it's just everyone sitting in a room and either performing poetry or discussing poetry or literally talking to each other about everything else except videos, Yeah. views. It was like only poetry. Like. हाँ, That was वो the एक only room talk. था बस। Like I still remember this place 2 years ago. One day there was a power cut और बहुत बारिश हो रही थी बाहर, तो कविता तो करनी थी मंडे, काफ़ी लोग थे, 40-45 लोग बैठे थे यहाँ पे। तो फिर वो बलराज इतनी बड़ी मोमबत्ती लेके आ गया लालटेन के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि वो गालिब के ज़माने में वो पता ना शमा यहाँ पे हाँ। रखो तो फिर शुरू होगा। तो बीच में रखा था यहाँ पे एक लंबे से टेबल पे, ये सही टेबल था और एक बंदा कुर्सी पे बैठे तो खाली उसका चेहरा दिख रहा है
और एंड पीपल आर जस्ट Listening. हियरिंग लिस्टिंग 12 12:30 तक वो सेशन चला. बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है. पहली बार जब हमने यहाँ किया था तो यहाँ पे सिर्फ 4 लोग थे. Yeah, he was telling me about how first few months you had like 6 people, 8 6 people 8 people. टीजे था, मैं था, हाँ, कैस था, हम लोग आते थे. दर्शन. मतलब आते थे कविता सुनाने के लिए आते थे. हाँ, बस मजा आता था. यही था. I think that was a very good time at that point. बट कि- वो ऐसा होता है ना यार कि जब किसी चीज़ को बूस्ट या पावर मिलता है ना तो उसमें हल्की हल्की से मिलावट आना भी शुरू होती है. और वो आप दैट इज़ क्या बोलते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. यू कांट कंट्रोल. यू कैन जस्ट कीप योर सेल्फ द वे away, yeah, from क्योंकि आप कितनों को समझाने जाओगे और कितनों को ज्ञान दोगे. इफ़ यू कीप योर सेल्फ इन देयर पोजिशन yeah. तो क्या तुम वैसा करते हैं? हाँ. दैट इज़ द क्वेश्चन. And I think somewhere it's very gray. Like sitting here, you could just sit and be like, नहीं मैं नहीं करता हूँ जब मैं को इतना फेम मिलता. But once you come there, you don't know what you'd land up doing because you never seen that life. बराबर है. But I just feel like those are really good days where you Yeah. discussed art, you discussed craft, you discussed each other's performances. People critiqued each other for real. And it was not like you get on the stage when you know you're not had a good performance and people are like, अच्छा. उस टाइम पे it used to happen on a bigger scale, like everybody used to talk and all. I remember Ramya used to keep a session, Alphabet Sambar करके होता था, Yeah. Habitat में होता था, where everyone like selected people का उसका close group था. We would come with our new pieces and we would just read out in front of like Manisha Lake was there, Ramya was there were a few other people were there. हम ऐसे ही रीड करते थे. then everyone will say कि इसमें उसको क्या अच्छा लगा, क्या बेटर हो सकता है, क्या पॉइंट हम नया बोल रहे हैं. एंड द पर्सन विल गो बैक विद अ गुड फीडबैक एंड ही वुड राइट. अभी वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई है वक्त की किल्लत के हिसाब से, मे बी आई गेस. और हम लोग करते हैं, मैं अभी भी करता हूँ. लाइक आई डू इट विद कपल ऑफ पीपल. लाइक वेन एवर आई राइट अ पीस आई रन थ्रू इट ज़ुबैर ज़की. सो ही गोज थ्रू इट, ही सेज कि भाई ये वर्ड सही है, ये वर्ड गलत है. आई डू दैट. तो कहीं ना कहीं वो हो रहा है. मतलब मैं भी करता हूँ, गौरव अभिषेक को दिखाते हैं, उनके जो फ्रेंड है. सो हर इंसान किसी ना किसी को तो दिखाता ही होगा. तो दैट इज़ हैपनिंग. मगर पहले एक अच्छे बड़े Yeah. लेवल पे होता था वो. Where all of us were together. Now too, we always had that one group of people you send your stuff to. But that was a अभी time वो where कैसा होता है ना कि वो पोएट से पहले वो ब्रांड वैल्यू इंसान का पहले दिख जाता है कि यार मैं तो ऐसा हूँ. तो हर एक के जहन में होगा, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना Somewhere, कहीं yeah. आता है. हाँ. but very interesting shift. So how do you manage to keep finding, like you said, variety hona chahiye? How do you manage to find different forms of writing or different forms of expression when it comes to performances? Apart from the fact, like you mentioned, you watch so many ads, but what is something you do? How do you learn these new forms of writing or performance? दो बड़ी सिंपल चीज़ है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया करो. दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने मत सुनो, मोबाइल में मत देखो, आजू बाजू के लोगों को देखो. बिकॉज आपके किरदार, आपकी कहानी आसपास ही है. तो इफ़ यू कीप ऑब्जर्विंग देम देन आई गेस यू विल गेट द स्टोरी. So let's get a little more deeper of what. So you, I need to get this clear. Do you call yourself a poet, a storyteller, or a both, or just a performer? I ऐसा just कुछ call है? myself as a writer. बस. Now it depends upon where I'm performing. Somebody likes to put as storyteller, somebody puts both, and somebody puts nothing. अच्छा. Somebody puts भाई spoken word अच्छा, artist. when you with your name, yeah. मतलब अभी ऐसा कुछ वो नहीं कुछ है. नहीं It's होता. all matters the same. Like you are a writer basically. तो मैं in a nutshell तो एक राइटर ही हूँ जो कविता भी लिखता है और कहानी भी लिखता है. That's it. Very interesting. So let's say let's take Ganjapan Express. You mentioned how you took a funny twist to it. So let's take us through the journey from the seed of Ganjapan Express through the entire process of how did it come out and why So this way. So we did प्यारे बाबा with Simmer and the content which was going थोड़े उस टाइम पे सीरियस कंटेंट ही जा रहे थे. जैसे सुदीप की पोएम थी, फिर प्राची पोएम वाज ऑन प्राइड,
and Ishmeet's poem was on some social issue. All of us, even mine was on some social issue. वही चला था, तो मैंने बोला यार सिमर कुछ फनी होना चाहिए. बोलते हाँ करो ना आप, कुछ भी करो. तो मैं बोला यार मैं किसी और, क्योंकि क्या है कि आप आजकल जोक को भी जोक की तरह नहीं लेते लोग. Like someone will get offended. Like when I go and watch comedy shows, somebody is making Muslim jokes on me, I take it like in a joke way only, because it's just for that light moment ना, मतलब कोई Yeah, it's a comedy show. हाँ, तो कोई जानबूझ के तो बेचारा नहीं बोल रहा, एक पीस ऑफ राइटिंग है. मैंने बोला यार ये कविता के रूप में है, अगर किसी को मोटा कह दे देंगे तो कोई बोलेगा कि तू कैसे कह रहा है, किसी के रंग पे कुछ बोल देंगे तो मतलब मैं मस्ती में लूँ तो क्या लूँ. फिर देन दिमाग में आया कि बॉल्डनेस, कि मैं गंजा हूँ, तो गंजे को कैसे रहते हैं. फिर मैं हमेशा से, सो द सीड ऑफ दैट केम वाज, आई वाज एट अ रेलवे स्टेशन एट रतलाम और समवन सेड 5 2 9 1 इंदौर से चल के मुंबई. आई सेड ये है भाई. फिर मैंने बोला कि ये तो शुरुआत का होगा, फिर बीच में क्या होगा. फिर बीच में जितने भी थे वो जो थर्ड पार्टी अपन इंस्ट्रक्शन सुनते ना, जैसे फ़ोन पे हमने सुना, और उस टाइम पे GST का भी हुआ था, तो ये सारी चीज़ें थी. सो देन आई रोट इट इन वन गो. वो हुआ, लिखने में टाइम नहीं गया था. क्या लिखना है, किस पर लिखना है, उस पर काफ़ी टाइम गया था. छोटे छोटे नुआंस एक बार लिखने बैठे तो फिर फ्लो आ गया था, फिर लिख लिया था. उसके बाद फिर इसके परफॉर्मेंस पे बहुत हुआ कि भाई इसको इस चीज़ को इस तरीके से बोलना है, इस चीज़ को इस तरीके से बोलना है. पूरा तैयार हुआ, फिर मैंने समर को सुनाया था, तो समर बोला मस्त लिखा है, मस्त है, बढ़िया है. एंड देन वी डिड इन खार एंटी सोशल, वहाँ पे एक शो हुआ था, वहाँ पे हमने किया था, वहाँ पे मज़ा आया था लोगों में. बट दिस more and more I started performing at different venues, the piece got better. Yeah, it grows. हाँ, because people remembered it. और मैं क्या करता था कि मैं पहले प्यारे बाबा करता था तो लोग बहुत सैड और सीरियस हो जाते थे, और फिर मैं फट से ये वाला पीस करता था ताकि मूड चेंज हो जाए. So that's how गंजापन has come about. I'm writing another piece like similar to a funny piece. Funny one. It's called as Plastic. Okay. So it's मतलब it has dual metaphor. एक environment वाला भी है जो सबसे बड़ा issue है, and how we have been plastic in our lives as a person. Oh. So it's on that take. Oh, very interesting. Is it मतलब writing process or it's WIP में चल रहा है. अच्छा. So another few weeks, days. Few weeks में like I would do it like मैं test करने तो यहीं पे आता हूँ पहला material. So वो है like I wanted to try something new, तो वो कोशिश कर रहा हूँ. That's very nice. That's interesting. You mentioned about self-critiquing and editing your own stuff. So after that day, I think 3 years back, you mentioned the Rekta ke event ke baad. So ever since, have you been like, except editing others, but do you also sit every time after a piece and be like, मैं कोई edit करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा? How? बहुत बार हुआ है, मतलब कभी कभार तो मैं कैसे करता हूँ हर्ष के, मैं जिस दिन मैं लिख लेता हूँ ना, उस दिन मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ, मैं उसको छोड़ देता हूँ. मैं 4-5 दिन बाद दोबारा आता हूँ कि क्या वो इतना ही एक्साइटिंग है, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर थोड़े दिन बाद और आता हूँ. तो वो प्रोसेस में 1-1.25 महीने तक करता हूँ. Wow. कि वो इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है क्या. एंड देन फिर उस दरमियान लाइक वो 1 महीने के प्रोसेस में आई गिव इट टू अदर्स ऑल्सो. लाइक एक पीस मैंने माँ पे लिखा था बहुत टाइम पहले, तो मैं नदीम को भी भेजता हूँ. नदीम इंग्लिश में ज़्यादा लिखते हैं, सो आई टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम हिम ऑल्सो इन माई फीडबैक. सो नदीम का एक फीडबैक था, यार मोहम्मद अच्छा लिखा है बट दिस इज़ नॉट साउंडिंग यू. दैट्स वाज द फीडबैक ही गिव मी. सो देन आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई मैं कैसे लेके आऊँ उसको. फिर एक पीस था मैंने पुरानी दिल्ली करके लिखा है, जो मैं रेख्ता के टाइम पे गया था. वो आज तक मैं एडिट ही कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पीस. सो और जैसे बिरयानी का पीस है, वो सिर्फ मैंने 5 मिनट में लिखा था. मैं बिरयानी खा रहा था तभी मुझे जहन में आया, और मैंने पेन पेपर लिया और मैंने लिख दिया. And that didn't need any more. हाँ, it कुछ didn't, नहीं. It कुछ just नहीं. came with the It flow. just came with the flow. ऊपर वाले की इनायत होती है ना, तभी आता है. So who consists of this list of people who you go to Go feedback to. if you ever go to? Except I go to 2-3 people for sure. One is my father.
Because he's very I wouldn't say honest, he's very brutal when he gives the feedback. Yeah. यार बकवास ठीक है, कोशिश करो हो जाएगा. Like if you say प्यारे बाबा क्या बकवास पीस लिखा है, उसे गंजापन, हाँ दैट इज समथिंग न्यू. बिकॉज ही कम्स कम्प्लीटली फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव कि उसको क्लिक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. देन जकी को डेफिनेटली आई शेयर माई पीसेस, ही इज़ अ रेगुलर वन. बिकॉज कैसा होता है कि मैं पहले बहुत करता था, लाइक मैं पहले बड़े बड़े वर्ड डाल देता था जस्ट टू साउंड अच्छा करने के लिए. बट देन धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि वो बड़े वर्ड आपको सही में डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए. तो जैसे बहुत सी बार होता है कि अभी मैंने मेरी एक नज़म थी जिसमें मैंने बोसा डाल दिया था और मैं बात सीरिया की कर रहा था कि, तो वहाँ पे वो सही साउंड नहीं कर रहा था. तो उन्होंने बताया कि ये वर्ड जो है बोसा बहुत पॉजिटिव और फ्रेश होता है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा नहीं जा रहा है, तो मैंने हटा दिया वहाँ से. देन नदीम को भेजता हूँ, नदीम हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. देन आई शेयर इट विद माई बेस्ट फ्रेंड्स एट टाइम, कभी कभार मैं उनको भी सुना देता हूँ. बट Zaki he's one of the regular guys whom I take feedback, be it my stories or be it something. Then kabhi kabar if it's related to stories, so I send it to Roshan sir also. I take his perspective, sir क्या आपको क्या लगता है. फिर अंकुर से मैं कोशिश करता हूँ फीडबैक लेने, बिकॉज अंकुर भी बहुत कमाल का फीडबैक देता है. बिकॉज ही चेंज्ड entirely the way I used to look at stories for me. He told me few things which were very important. So he's hard to get, like his time is very hard to buy. But वो जब भी फ्री होते तो बताते हैं, ऐसा होता है. Wow, that's a very nice set of. You have a good backbone in terms of like feedback. Touch wood, alhamdulillah. It's like there are a lot of people who are always there. And another thing, you should wait for the feedback. आप क्योंकि आपको आज चीज का ये मतलब नहीं कि सामने वाला बंदा भी आज ही दे देगा. He has some other priorities also, ना. I think that is very interesting conversation with the poet once. I think a year or 2 years back about the same thing, where she had posted an Instagram story saying that the same thing कि आप अगर feedback भेज रहे हो तो ठीक है, I'll take it. And these were people from the who know her, but not. It's not like मैंने आपको पूछा, मैं बस भेज रहा हूँ आपको कि दे दो, कुछ लिखा है मैंने. And then after I sent it to you, now that I am holding you accountable and I'm making you feel obliged कि अभी आपको भेजना ही पड़ेगा reply. And I'm holding that person कि यार भेज दो feedback, and the person is like यार I have other things to do. मेरे साथ अभी हुआ है recently. हाँ, recent. मैं फिर बाद में मैंने कहा कि भाई मुझे दूसरे भी काम है, क्योंकि क्या होता है यार कि, और मैं हर बार फीडबैक में एक चीज़ हमेशा मेंशन करता हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक. आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग कम्प्लीटली. सो एंड फीडबैक आपको लेना है तो बेस्ट है कि आप आपके क्लोज दोस्तों को सुनाओ, क्योंकि वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, वो आपको अच्छा या बुरा बोलेंगे. क्योंकि आपकी एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, मुझे पता नहीं आप कहाँ से सोच रहे हो, क्या करते हो. जैसे नदीम नोज माई स्टाइल ऑफ राइटिंग, सो दैट्स व्हाई व्हेन ही वेंट टू दैट माँ वाला पोएम ही सेड कि दिस इज़ नॉट यू. दैट वाज हिज फीडबैक इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये मेरा लिखा हुआ नहीं है. That is very important too. I think either go to family or closest friends who know you for because कैसा है कि यार हाँ ठीक है, आप किसी को कोई आप किसी को लुकअप कर रहे हो, अच्छी बात है, मगर कैसा होता है कि वो उसको खुद को जो पढ़ना है उसको उसके लिए टाइम नहीं मिलना मुश्किल है, तो वो फीडबैक के लिए कैसे बैठेगा. आई मीन यू आर गिविंग फीडबैक, यू हैव टू बी एटलीस्ट, आई एम वेरी ऑनेस्ट, लाइक हाँ भाई ये चीज़ें हैं. मतलब मैं ये नहीं बताता कि क्या, मुझे जो अच्छा लगता है मैं हमेशा बताता हूँ कि ये अच्छा लग रहा है मुझे. सो हाय गाइज, ये जो लंबा सा आदमी मेरे बाजू में बैठा है भगवा कलर का कुर्ता पहन के, उसके चैनल का नाम है वॉइस ऑफ हर्ष. तो ये जुमले मैंने अपने चैनल के लिए भी कभी नहीं कहे कि आप बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. मगर आज हर्ष एक नई चीज़ लेके आया है. वॉइस ऑफ हर्ष इज़ द नेम ऑफ हिज चैनल. So for more updates and for more interesting content, please go and subscribe the channel and spread the word among your friends.